Hello, good afternoon, children. Welcome to Push English by Renuka Singh. So, today I am with a new topic that is in advanced writing skill and it is called invitation. And let us proceed forward without wasting any time. So, first of all, let me give you a brief intro into how the breakup of 3 marks had been done for this writing skill as per CBSE guidelines. You can see 3 marks are meant for this, and the split up marks is divided into format, content and expression. So you can see 1 plus 1 plus 1. And now proceeding on to the thing that if it can be either in card format or in letter format. So that depends whether if it is a card, then the marks is for the name of the institution and address, or probably if it is a marriage card, it is for the name of the host, then receiver's name and address in case if it is in letter format, and date and salutation, then subject, name of event, complimentary close and subscription with designation. And if it is in card form, then the things are a little different. When it is in card form, again the format, the 1 marks, we should write down the name of the host line, which is called the host line 1, and then after that is a request line, that is where you request your guest to come to the ceremony or to the event organized, and after that is the date and time and venue of the event that is going to happen. Then comes content, that is of 1 marks, and then is the expression. Okay, so this was all about the breakup or the split up marks. Now coming on to what exactly is invitation. So you can see an invitation is a written or verbal request sent to somebody, sent to an individual or group of people who are to be invited to go somewhere on some occasion. It's a request or a solicitation or an attempt to get another person to join you on specific event. You can understand it is actually a request or a solicitation. When you're requesting somebody to come to your house to join you in some of your celebration, that is called invitation. Then it is normally printed on cards, but it can be also written in letter format, that I'll tell you how and when. If it is wedding event or birthday celebration or inauguration or housewarming party, these are some special celebrations in India. So there it is in the card form. But when it is an event related to school wherein you are inviting chief guest, there it comes in the form of letter. Okay, as we'll proceed forward, you'll see that how things are. So before that, just let me tell you hurriedly that it is divided into 2 parts, formal and informal, and it can be either in the form of invitation card, which can be considered formal, or in the form of a note or a letter, which is more like informal, but actually it is formal. So there is bit confused. I hope you are not confused here. There is bit confusion, but that will be that will really dispel when you will proceed to the next slides. So now come on to formal invitation. Now this formal invitation is, see, first of all, there should be every time you should keep this in mind, that whenever you are designing a formal invitation, it can be either in the form of card or in the form of letter. This has to be kept in mind. Okay, and in formal invitation card, one starts with the designation of organizer. यानी कि जब भी आप invitation card को शुरू करेंगे लिखना, सबसे पहले जो कोई भी organizer है, अगर वो event है तो, और अगर wedding ceremony है या कोई celebration है, तो obviously वहाँ organizer ना होकर के क्या होगा, host होगा, है ना.
तो इस होस्ट का डेजिग्नेशन रहेगा, नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स रहेंगी उस इवेंट के बारे में कि भाई डेट, टाइम और वेन्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। फिर अगर कोई इवेंट है उसका चीफ ऑर्गेनाइज़र है कोई, या फिर अगर कोई सेलिब्रेशन है तो उसका कोई ना कोई होस्ट होगा। तो ये नाम ज़रूर रहेगा उस पर, और साथ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो रहेगा RSVP ऑन द बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द कार्ड। दैट इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज़ रिटन RSVP. Now we'll talk on this RSVP. This RSVP is actually a French word which actually is full form of, this is actually abbreviation of the word Respondus Sil Vaus Late, which means in English, which means reply if you please. यानी कि मन है तो रिप्लाई करो, नहीं मन है तो नहीं करो। I hope this RSVP is clear to you all. Now proceeding on to the features of formal invitation, and they are as follows. First of all, see, whichever short writing task is there in class 11th or 12th, it is made or written or designed or drafted in a rectangular box. ये तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक बॉक्स आपको बनाना है। दूसरा, ये जो इनविटेशन कार्ड है ये हम लिखते हैं थर्ड पर्सन में। ओके, इट्स नॉट रिटन इन फर्स्ट पर्सन, इट इज रिटन इन थर्ड पर्सन, मेकिंग यूज ऑफ ही, शी, it, they, and the other pronouns like his, her, their. Is that clear? So this is written in third person. It is never written in first or second person. Keep that in mind. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई एब्रीविएशन या शॉर्टकट्स हम नहीं यूज करेंगे एक्सेप्ट द वर्ड RSVP which I told. Okay, no shortcuts, no abbreviations. Then simple present tense is used. बहुत ही polite, courteous और pleasantry tone रहता है invitation card का. You're requesting somebody, so your attitude should be very humble and down to earth. Then this invitation card is a single sentence presentation. There isn't any punctuation mark used in it. No comma, no full stop, no exclamation, only single statement. Then your signature is not allowed. The host, his name is more than enough. There is no need of signature. If it is event, organizer's signature is also not required. Only name is more than enough. Then comes no punctuation. I already told you there shouldn't be any punctuation at the end of the lines. Then comes the next point, and that is each entry is to be mentioned in a separate line. There is no requirement of jumbling up, making it in a congested form. हर एंट्री को आप अलग अलग लाइन में लिखेंगे. For example, we'll start with, if it is a card, suppose this is a card which I am making. Okay, this is a card. In the first line itself will be the name of the person who is inviting the guest. That is the host line. We call it host line. तो पहले ही लाइन में आपको होस्ट का नाम रहना चाहिए. Then after that comes the line wherein formal expressions like request the pleasure of your company, or Mr. and Mrs. so and so solicit your benign presence, or the principal, the staff and the students of ABC public school request the gracious presence of. तो ये जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन लाइन और रिक्वेस्ट लाइन. उसके बाद से हम आते हैं जो भी आपके यहाँ इवेंट है, सेलिब्रेशन है, उसका टाइम, डेट, and if you want you can also mention day. Okay, that is not compulsion. Then comes purpose and occasion of invitation. Why are you inviting that particular person? वो occasion जो है उसका purpose क्या है, and what do you expect from the other person.
देन अब ये तो हो गया हमारे ऐसे सेलिब्रेशंस में जहाँ पर हम ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट या कोई सेलिब्रेशन होता है, ठीक है। अब आते हैं, अगर कोई ये ऑफिशियल इनविटेशन है तब आप क्या करेंगे। ऑफिशियल इनविटेशन में हमें स्पेसिफिकली ये ध्यान रखना है कि टाइम जब गेस्ट आ जाएंगे उसका मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा नेम ऑफ द चीफ गेस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी मेंशन, एंड द प्रोग्राम लिस्ट। सो इतनी छोटी से लेटर में प्रोग्राम लिस्ट तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत प्यार से लिख देते हैं प्रोग्राम लिस्ट ओवर लीफ, यानी कि प्रोग्राम लिस्ट जो है वो पीछे लगा है, ठीक है। तो क्या जरूरी चीज़ होगी, अगर कोई ऑफिशियल इनविटेशन है, आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं अपने स्कूल में गेस्ट के तौर पर, उनको इनवाइट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मेंशन करिए नेम ऑफ चीफ गेस्ट। सेकेंडली यू विल मेंशन दैट एट बाय व्हाट टाइम ही विल बी सीटेड, सो दैट बाकी के गेस्ट जो आ जाएं वो गेस्ट ऑफ ऑनर से पहले आ जाएं। और प्रोग्राम की लिस्ट आप दे सकते हो, विच कैन, वी डोंट नीड टू राइट द प्रोग्राम, बट येस इट कैन बी रिटन प्रोग्राम लिस्ट ओवर लीफ। उसके बाद जब हम बात करते हैं कार्ड की, तब तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपने, जो हम ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लेटर की, तो वहाँ पर आपको कोई एब्रीविएशन नहीं यूज़ करना है। मैंने बताया ना, कार्ड में भी सिर्फ RSVP ही यूज़ करना है, और मिस्टर एंड मिसेज यस वो थोड़े एब्रीविएशन है, उसको पूरा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जब हम लेटर लिखते हैं तो उसमें हम कोई एब्रीविएशन नहीं यूज़ करते। हाँ, जो डेट है राइटिंग का, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। उसके बाद से ये आपको ज़रूर बताना है कि पार्टी या इवेंट हो रही है, क्या सेलिब्रेट कर रहे हो, टू सेलिब्रेट और टू ऑनर, किस उपलक्ष्य में है। फिर आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि वैलिड फॉर 1 और 2 पर्सन्स ओनली एट द एंड। ये बिल्कुल आपका कार्ड जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, यानी कि आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ इनवाइटीज़ जो हैं वो लिमिटेड हैं, आपको लिमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज एक कार्ड पर बहुत लोग आ जाएंगे एंड देयर विल बी लॉट ऑफ रश एंड क्राउड। उसके बाद से लेंथ एज पर CBSE गाइडलाइंस, दिस इज CBSE, आई एम सॉरी, there is a spelling mistake, CBSE. As per CBSE guideline, the word limit is restricted to 50 words only. Then next point is the 5 W's that we should keep in mind when we draft any kind of invitation, and that is, these are, when these 5 W's are included, when you get an answer to these 5 W's, your card is complete in itself. First of all, W is what is the occasion, what. Then when it is going to happen, date and time is required, when. Then where, what is the venue, place क्या है, कहाँ organize हो रहा है, who is inviting you, name of the host, and then whom. यहाँ पर गेस्ट के तो नाम नहीं होते हैं जब आप कार्ड करते हैं, कार्ड बनाते हैं, लेकिन जब आप लेटर बनाते हैं और वो फॉर्मल इनविटेशन होता है, तो उस केस में सिर्फ किसका नाम रहेगा, नेम ऑफ द चीफ गेस्ट। इट अपीयर्स ऑन दी, इट शुड बी देयर ऑन दी इनविटेशन, इन द इनविटेशन लेटर। और जब इनविटेशन कार्ड आप बना रहे होंगे तो उसमें ज़रूर मेंशन करेंगे नेम ऑफ द चीफ गेस्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं कुछ फॉर्मेट को लेकर चलते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा फॉर्मेट, तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी आपके लिए। सबसे पहले जो फॉर्मेट है उसमें होता है होस्ट का नाम, उसके बाद एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी और सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस और बिनाइन प्रेजेंस, तो इट कैन बी, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। एंड देन पर्पस ऑफ द इन्विटेशन, किस लिए आप बुला रहे हैं, नेम ऑफ द ऑनरी, ठीक है। तो उसके बाद से डेट एंड टाइम ऑफ द इवेंट। अब ये ध्यान रख लेना, आपकी जो डेट्स आप लिखते हो वो लेटर्स में लिखना है, एब्रीविएशंस आप प्लीज़ नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लिखना चाहते हैं अगर 2 अक्टूबर, तो यू विल जस्ट राइट डाउन 2 अक्टूबर 2020, ओके।
उसके बाद से जब प्लेस का नाम लिख रहे हैं तो प्लीज़ लोकेशन ज़रूर बताएं कंप्लीट एड्रेस के साथ, क्योंकि जो लोग पार्टी और इवेंट में पहुंचते हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, सो दे कैन एंटर द एड्रेस विदाउट एनी इनकन्वीनियंस। उसके बाद मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि RSVP के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इसका फुल फॉर्म रिस्पॉन्डेंट सिल्व हाउस प्लेट होता है, एंड इट मीन्स प्लीज़ रिस्पॉन्ड और प्लीज़ रिप्लाई इफ़ यू प्लीज, रिप्लाई इफ़ यू प्लीज़। तो ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि अगर हम इसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो एक तरीके से गलत करते हैं। एज अ गेस्ट वी आर सपोज टू गिव आंसर टू द पर्सन हु हैज कॉल्ड अस ऑन इनविटेशन। सो क्योंकि हम उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं होस्ट आपकी कन्वीनियंस के लिए। टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर ज़रूर होना चाहिए एड्रेस में, कार्ड में होस्ट का। उसके बाद कोई और डिटेल अगर आप, तो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, लेआउट देखते हैं कि ये इनविटेशन कार्ड आखिर होते कैसे हैं, इनको आखिर डिज़ाइन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं लूँगी कार्ड, ठीक है। और ये जो कार्ड है ये आप देख सकते हैं, इसमें ये मैंने इस तरीके से आप आउटलाइन करेंगे। और आउटलाइन आप देख सकते हैं, ये देखो मैंने ब्लैक से आउटलाइन किया, आप नेवी ब्लू स्केच पेन का यूज़ करिए CBSE गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वो ब्लैक यूज़ करते हैं, सो आई ऑलवेज एडवाइज देम नॉट टू यूज़ ब्लैक, दे शुड ओनली यूज़ नेवी ब्लू स्केच पेन, एंड टाइम एंड अगेन आई कीप देम रिमाइंडिंग दिस। तो आप देख सकते हैं सबसे ही पहली लाइन में आपका जो किसका नाम लिखा रहेगा, आपने होस्ट का नाम लिखा रहेगा। अब यहाँ डिपेंड करता है कि अगर वो शादी है, शादी का कार्ड है, तो आप लिखेंगे मिस्टर एंड मिसेस सो एंड सो, ठीक है। और अगर वो स्कूल का कोई फंक्शन है तो उसमें आप लिखेंगे द प्रिंसिपल, द स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स ऑफ ABC पब्लिक स्कूल पुणे, ठीक है। ये हो गया होस्ट का नाम। उसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ डिटेल में पिछले स्लाइड में, और जिसमें आप लिखते हो रिक्वेस्ट द बिनाइन प्लेजर, बिनाइन प्रेजेंस ऑफ। पर्पस क्या है इनविटेशन का, वेदर इट इज़ एन वेडिंग सेरेमनी और बर्थडे सेलिब्रेशन और हाउस वार्मिंग पार्टी और इट इज़ एन फंक्शन, वो आप करोगे। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है बच्चों कि अगर वो शादी है तो ऑनरी यहाँ कौन है, ऑनरी यहाँ पर है जो ऑब्वियसली ब्राइड और ब्राइड ग्रूम है, वो उनके नाम आपने देखा होगा लिखा रहता है कि श्वेता वेड्स सुशील, है ना। तो यहाँ पर ऑनरी ये दोनों है। लेकिन अगर वो एक इवेंट है तो उसमें हमारे ऑनरी होते हैं हमारे चीफ गेस्ट, ठीक है। तो चीफ गेस्ट का नाम आना चाहिए। फिर क्या इवेंट है वो आप बता दीजिए, डे, डेट, टाइम एंड इवेंट। अगर सेलिब्रेशन है तो उसमें भी आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। फिर नेम ऑफ द प्लेस, लोकेशन विद कंप्लीट एड्रेस। अभी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आगे किए हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। आई होप सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आप देखिए, बस इसका ध्यान देना, RSVP आपके एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा, उसमें टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर रहेगा, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है, आई एम सॉरी, जस्ट वेट, यस, सबसे पहले आप आते हैं, एक कार्ड लेते हैं हम। ये मैंने 4 एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, हर 4 अलग अलग डिफरेंट ओकेजन्स के ले लिए हैं। सबसे पहला हम लेते हैं, एक फॉर्मल इनविटेशन ड्राफ्ट करना है फॉर सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल डे ऑफ योर स्कूल टू बी सेंड टू पेरेंट्स, ठीक है। बाकी के इन्वाइटीज़ को हमें भेजना है ये। तो हम क्या करेंगे, वी विल सी इट हाउ इट इज़ डन। आप देख सकते हो पूरा कार्ड, ठीक है। आप देखिए यहाँ होस्ट का नाम आ गया, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, ठीक। ऑफ लगा दिया आपने, कहाँ के हैं, स्कूल के, DAV पब्लिक स्कूल नैनीताल के हैं। और ये आपकी रिक्वेस्ट लाइन होगी जिसमें आप स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन देते हो, ये सॉलिसिट योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ओकेजन। बिनाइन की जगह आप ग्रेशियस भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा वर्ड लगता है ग्रेशियस। सॉलिसिट की जगह सिंपल रिक्वेस्ट भी लिख सकते हो। फिर देखिए एनुअल फंक्शन है सृष्टि 2021, कब हो रहा है ये देखिए, डेट मेंशन किया है। आप चाहे तो यहाँ डे भी लिख सकते हैं, मंडे, नहीं चाहे तो ना लिखें। फिर एट लिखकर प्रीपोजिशन आपने टाइम डाल दिया, फिर एट लिखकर आपने वेन्यू डाल दिया, ठीक है। और ये हो गए हमारे ऑनरी का नाम, क्योंकि हमारे लिए इस इवेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे चीफ गेस्ट। तो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर सो एंड सो, यहाँ पर नाम आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग भर लीजिए, कोई भी इमेजिनरी नाम। ही विल बी द चीफ गेस्ट एंड गिव अवे द प्राइजेस, he will give away the prizes,
ओके, उसके बाद आप देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट पर जाइए, क्या लिखा है, RSVP। ठीक है, RSVP के बारे में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। मिस्टर केशी नौटियाल, यानी कि ये पक्का इधर ही वुड बी द डायरेक्टर और द प्रिंसिपल, और उनका फ़ोन नंबर। फिर ये जो चीज़ है, हाँ ये थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई है बच्चों, इसमें ध्यान रख लेना आप कि ये जो नोट है, ये नोट यहाँ ना होकर के यहाँ रहेगा सबसे लास्ट में। उससे पहले आपका ये आएगा विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम, आप देख सकते हैं पहले विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम लिखेंगे आप, और ये जो नोट मैंने अभी अभी मार्क किया था ये आप ले आएंगे नीचे, इसके नीचे, और आप यहाँ से शुरू कर सकते हो उस नोट को, कोई इशू नहीं है, या एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हो। ये आपने बता दिया कि चिल्ड्रन बिलो 12 विल नॉट बी अलाउड एंड वैलिड फॉर ओनली 2 पीपल, तो आपने लिमिट भी कर दिया अपने इन्वाइटीज़ को। और ये अगर एक्सट्रीम LHS में है तो ये एक्सट्रीम RHS में होगा, क्या आपका विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम। ठीक है, आप लिख सकते हो DAV फैमिली, DAV पब्लिक स्कूल। ठीक है, इस तरीके से आप अच्छे से इम्प्रेसिव वे में बना सकते हो। तो ये तो था एक इनविटेशन कार्ड फॉर एनुअल फंक्शन। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, जहाँ पर आपको एक फॉर्मल इनविटेशन ड्राफ्ट करना है ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेस AK खन्ना की तरफ से, उनकी ग्रैंड डॉटर की शादी का कार्ड है ये। और आप इसमें काफ़ी डिटेल्स अपने आप से भी इन्वेंट करेंगे, क्वेश्चन में नॉट नेसेसरली हर बार सब कुछ दिया होगा ऐसा ज़रूरी नहीं, जो दिया है वो इनपुट्स यूज़ करिए, जो नहीं दिया उसको इन्वेंट करके यूज़ करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं आपके होस्ट लाइन पर। फिर यहाँ पर होस्ट कौन है, मिस्टर एंड मिसेस AK खन्ना है। ये आपकी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हो गया, solicit or request your benign presence on the auspicious occasion of marriage of their granddaughter। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये देखिए थर्ड पर्सन यूज़ किया गया है। ठीक है ना, इन पे ध्यान देना है बस। उसके बाद से ऑनरी, यहाँ पर ऑनरी क्या है भाई, जिसकी शादी हो रही है, श्रुति, उसकी डिटेल दे दी हमने कि डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस VK खन्ना, शी इज गेटिंग मैरिड टू विशाल हु इज सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस DK सैनी। ठीक है, कब हो रहा है, 30 नवंबर को शादी हो रही है। कहाँ हो रही है, आशीर्वाद मैरिज लॉन में हो रही है। कितने बजे हो रही है, 8 बजे हो रही है। अब रही शादी की बात, जैसे हम इनविटेशन कार्ड एनुअल फंक्शन का जब हम बना रहे थे तो हमने ये नहीं डाला था प्रोग्राम की लिस्ट, लेकिन इसमें गुंजाइश होती है फिर भी कि आप एक लिस्ट तो नहीं कहूँगी, कुछ प्रोग्राम जो इम्पोर्टेंट हैं वो डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लड़की की शादी है, यहाँ श्रुति की शादी हो रही है, तो प्रोग्राम लिस्ट में आपने क्या डाला, आपने डाल दिया रिसेप्शन ऑफ बारात। उसके बाद अच्छा यहाँ डेट बच्चों नहीं मेंशन हुई है, प्लीज़ आप मेंशन कर लेंगे डेट यहाँ पर। रिसेप्शन ऑफ बारात 7 PM। कब हो रहा है ये हो रहा है 31/11/2021। ठीक है, क्योंकि 31 को, आई एम सॉरी 30 नॉट 31, नवंबर का महीना जो है सिर्फ 30 दिनों का होता है, तो 30 नवंबर आपने डेट डाल देनी है। ठीक है, आप डेट डाल देंगे, यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है, प्लीज़ आप डेट मेंशन कर लेंगे 30/11/21। फिर विदाई आपकी अगले दिन सुबह हो रही है, यहाँ पर हम फिर सॉरी, यहाँ पर ध्यान रखिए PM ना होकर के ये AM हो गया है। ठीक है, AM करना है, आपने PM लिख दिया गलती से मैंने। रिसेप्शन एट इन लॉज हाउस, यानी कुछ लोग रिसेप्शन पार्टी देते हैं जिसे हम बहु भोज या प्रीति भोज भी कहते हैं, तो वो आपने फिर दे दिया 2 तारीख को 2/12/21, और टाइम हो गया 8 PM। तो इस तरीके से प्रोग्राम लिस्ट। अब डिफरेंस क्या, अगर यही विशाल की शादी होती, ऑब्वियसली विशाल का नाम ऊपर होता और श्रुति का नाम नीचे होता, यानी विशाल के पेरेंट्स ये कार्ड छपवा रहे होते, तो क्या करते, सिर्फ इस प्रोग्राम की लिस्ट की में एक चेंज होता, रिसेप्शन ऑफ बारात की जगह आप क्या लिख देते, डिपार्चर ऑफ बारात, यानी घर से बारात कितने बजे निकली है उसका मेंशन कर दो। ठीक है, 4 बजे निकली है। उसके बाद से वहाँ पर डिनर कितने बजे आप कर रहे हो लड़की वालों के घर, वो डिनर का टाइमिंग आप डाल दो 8 PM सेम डेट पे। अब यहाँ तो विदाई थी, रिसेप्शन था, यहाँ क्या होगा, अगले दिन ऑब्वियसली आप आकर के रिसेप्शन दोगे, तो यहाँ पर आप लिख देंगे रिसेप्शन। ठीक है, उसकी मेंशन कर दो। तो एक तरीके से ये तो सेम हो गया, बस ये इन लॉज वर्ड हटा देना है लड़के में। हाँ, और विदाई नहीं होगी लड़के में, वहाँ हो जाएगा डिनर, और रिसेप्शन की जगह हो जाएगा डिपार्चर। बस इतना सा अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। लास्ट में आप देख सकते हैं हमने RSVP लिख दिया, मिस्टर एंड मिसेस AK खन्ना लिखा, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, और इधर विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम खन्ना फैमिली। जो आपके पास बहुत टाइम है तो आप कुछ ब्रदर्स और सिस्टर्स और उनके नाम लिख दिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश के इन्विटेशन कार्ड में सिर्फ खन्ना फैमिली आपने लिख दी, वो बहुत है।
अब आते हैं ऐसे ही एक और इनविटेशन कार्ड की तरफ। आप देखिए कितना अट्रैक्टिव इनविटेशन कार्ड मैंने बनाया है, और वो इसलिए है क्योंकि ये टाइनी मंचकिन नाम का एक इंडोर प्लेग्राउंड ओपन होने जा रहा है, उसकी नई ब्रांच ओपन होने जा रही है F71 साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 दिल्ली में, संडे 3 को जुलाई। तो फॉर्मल इन्विटेशन फैमिली और फ्रेंड्स के लिए 50 वर्ड्स में करना है आपने। फिर ये ध्यान रखना है कि टाइनी मंचकिन एक इंडोर प्लेग्राउंड है, तो आपने होस्ट लाइन में ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप आए, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन ग्रैंड ओपनिंग ऑफ देयर न्यू ब्रांच एट, आपने एड्रेस पूरा दे दिया, आपने ऑन करके डेट दे दिया, ऐड करके टाइम दे दिया, ठीक है। अब ऑनरी कौन है यहाँ पर, इस केस में ऑनरी हैं मिसेस मोनिका डिसूजा, जो कि क्या करेंगी, एक रिनाउंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, और वो चीफ गेस्ट रहेंगी, वो इनॉग्रेट करेंगी इस प्लेग्राउंड को। हो गया खत्म। अब जो इसके प्रोपराइटर हैं, RSVP के नीचे आप सविता सहगल जी का नाम लिख रहे हैं, जो कि प्रोपराइटर है। ये इनपुट था नहीं, आपने खुद अपने मन से इन्वेंट कर लिया। यहाँ चाहो तो आप लिख सकते हो राइट हैंड साइड पे विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम, लेकिन ज़रूरत नहीं है ऐसे कार्ड्स में। वो शादी के कार्ड में नॉर्मली हम लिखते हैं या एनुअल फंक्शन के कार्ड में लिखते हैं। अब आते हैं ऐसे ही एक फॉर्मल लेटर की तरफ, जहाँ पर मैंने अब तक क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कार्ड, और अब हम करने जा रहे हैं लेटर। तो ये ध्यान रखिएगा, डेट है 30 नवंबर को, आपके स्कूल ने एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करना है, और आप चाहते हैं मिस्टर धनराज, आई एम सॉरी पिट्टाई लिखा है, इट इज पिल्लाई, PILLAI होना चाहिए, अ नोटेड हॉकी प्लेयर टू गिव अवे द प्राइजेस टू द बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द स्कूल। और आप ये फॉर्मल इन्विटेशन लिखिए 50 वर्ड्स में, टू आस्क हिम टू इन्वाइट हिम टू ग्रेस द ओकेजन। आप करुणा और करण हैं, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा में, ठीक है। अब इस पर ध्यान दीजिए आप जरा। सबसे पहले आप ध्यान, आप देख सकते हैं लेटर जरूर है, लेकिन इसकी वर्ड लिमिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है, वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स, इससे ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ से शुरू करिए। ये आ गया आपका सेंडर्स एड्रेस, सेंडर कौन है यहाँ पर, सेंडर यहाँ पर है सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा, और यहाँ पर एक लाइन अगर आप छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, कोई रूल नहीं है बट प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। तो ये आपका हो गया डेट, ठीक है। ये आपका हो गया सेंडर एड्रेस, 2 लाइनों में, 2 लाइन में आपने सेंडर्स एड्रेस दिया, और उसके बाद से एक लाइन छोड़ करके आप देंगे डेट, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं सीधा सैल्यूटेशन। अच्छा, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि मैम इसमें हम सब्जेक्ट लिखें कि ना लिखें। बिल्कुल ना लिखें, कोई ज़रूरत ही नहीं है लिखने की, क्योंकि ये इनविटेशन लेटर है, वर्ड लिमिट हमारी लिमिटेड होती है, इसलिए ज़रूरत नहीं है। वो नॉर्मली हम फॉर्मल लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इज एनुअल स्पोर्ट्स डे, ये तो पता ही है आपको, आपने डेट मेंशन कर दी। योर ग्रेशियस प्रेजेंट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड इंस्पायर अस ऑल। यू आर रिक्वेस्टेड टू हैंड ओवर द प्राइजेस टू द बडिंग स्पोर्ट्स persons of the school in our school playground at 2 p.m. Kindly inform your availability by 20th नवंबर। तो फंक्शन आपका होना है 30 नवंबर को। 1 नवंबर को आप चिट्ठी लिख रहे हैं और आप उनसे कंफर्मेशन चाहते हैं कि भाई वो आ भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि एक तरीके से आप अभी उनको इनवाइट कर रहे हैं कि वो चीफ गेस्ट बने, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में, ये भी ज़रूरत नहीं है वैसे योर्स फेथफुली लिखने की, सिर्फ नाम काफ़ी है, लेकिन अगर ये लिख देंगे तो थोड़ा इंप्रेसिव लगता है। और प्लीज़ योर कभी मत लिखिएगा, योर्स लिखिएगा। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगी, बहुत सारे बच्चे योर्स लिखते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस डालते हैं, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, दिस इज़ करेक्ट, ओके। योर्स फेथफुली करुणा, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं ये सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा में। अब आते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन पे। इनफॉर्मल इनविटेशन क्या होता है, इनफॉर्मल इनविटेशन जो हमारा होता है ये है, ये नॉर्मली हम पर्सनल ओकेजन्स पे सेंड करते हैं अपने क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। इसका कोई लेना देना नहीं है, फॉर्मल फॉर्मेट नहीं होता है इसका, कार्ड की तरह ज़रूरत नहीं है, ये लेटर की तरह ही लिखा जाता है। तो मैं जब भी बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं ज़रूर ही उनको बताती हूँ कि बेटा जब फॉर्मल इन्विटेशन हो तो 2 चीज़ों की गुंजाइश हो सकती है, कार्ड और लेटर, लेकिन जब इनफॉर्मल इन्विटेशन हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वो लेटर। और यहाँ भी बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये लेटर सिर्फ तभी होगा जब आप किसी को चीफ गेस्ट बनने के लिए इनवाइट कर रहे हो अपने स्कूल में, या किसी इवेंट में इनॉग्रेशन है उनको इनवाइट कर रहे हो, ठीक। अब आते हैं फीचर्स पर। इसका स्टाइल बड़ा ही इनफॉर्मल और रिलैक्स्ड होता है। इनफॉर्मल इन्विटेशन में पर्सनल फीलिंग और इमोशंस के लिए जगह होती है, जो कि फॉर्मल इन्विटेशन में नहीं होती। फीचर्स पे आते हैं। फीचर्स हमारे जो हैं
वो ये हैं कि सबसे पहला तो ये किसको लिखा जाता है, हमारे क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और एक्वेंटेंसेस को। उसके बाद से ये ऑर्डिनरी पर्सनल लेटर का पैटर्न फॉलो करते हैं आप, इसको हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखते हैं। ये एक डिफरेंस समझ में आया आपको? फॉर्मल इन्विटेशन को हम थर्ड पर्सन में लिखते थे, हाँ, और इनफॉर्मल इन्विटेशन को हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखते हैं। डू नॉट राइट सब्जेक्ट एंड रिसीवर्स एड्रेस। देख रहे हैं आप, इनफॉर्मल इन्विटेशन में ज़रूरत ही नहीं है सब्जेक्ट और रिसीवर एड्रेस लिखकर, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। सिर्फ आपने सेंडर्स एड्रेस डाला, डेट डाला, सैल्यूटेशन लिखा और सीधा अपनी बॉडी शुरू कर दी लेटर की। राइट इन वार्म एंड पर्सनलाइज्ड स्टाइल, इसका मतलब कि बहुत ही वार्मथ होनी चाहिए आपका। आप पर्सनल और इनफॉर्मल हो सकते हैं उसमें, लेकिन अननेसेसरी डिटेल्स को प्लीज़ इंक्लूड मत करिए। आपका टोन बहुत ही रिलैक्स्ड और इनफॉर्मल हो, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इस लेटर को डियर से शुरू करें और डियर के बाद आप चाहें तो अपने जिसको भी आप लिख रहे हैं उनका नाम लिख दें। टेंसेज अलग अलग यूज़ होता है, जैसी डिमांड होती है उसके हिसाब से आप देख लेंगे, जबकि फॉर्मल इन्विटेशन में याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस था सिर्फ। उसके बाद लेटर बहुत ही इलेबोरेटिव हो सकता है, बस डिटेल इवेंट्स की डिटेल दीजिए, बाकी फालतू की चीज़ें इसमें मत इंक्लूड करिए। ये आप देखिए, ये है फॉर्मेट, एक लेआउट है जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से लेटर लिखा जाता है इनफॉर्मल इन्विटेशन। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि सेंडर्स एड्रेस है और वो 2 लाइन में आप लिख लें, टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज बोल रही हूँ, आपका राइट हैंड कॉर्नर नहीं, आपका लेफ्ट हैंड साइड और पेज का राइट हैंड साइड। प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे आपको सहूलियत हो। यानी मैं तो सबसे पहले बोलती हूँ बच्चों को, बच्चों मार्जिन याद रखना, मार्जिन की तरफ आपने सेंडर्स एड्रेस लिखना है, ठीक। उसके बाद से डेट आपने एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, जिसमें कि आप इसको भी सेम मार्जिन वाली साइड ही लिखेंगे। और एक्सपैंडेड फॉर्म का क्या मतलब होता है कि बहुत प्लीज़ शॉर्टकट मत लगाइएगा इसमें। जैसे कि बच्चे नॉर्मली उनकी आदत होती है वो लिख देते हैं 1, 11, 21, ऐसे नहीं करना है, ये बहुत अनइम्प्रेसिव तरीका है। इसकी बजाय आप लिखेंगे बहुत अच्छे से 1 नवंबर 2021 या सिर्फ 21, और चाहे तो कॉमा डालें चाहे तो ना डालें। या दूसरा तरीका है नवंबर 1, 21, ठीक है। तो एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे आप बहुत ही उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। सैल्यूटेशन आ जाता है, सैल्यूटेशन में आप डिपेंड करता है आप किसको इनवाइट कर रहे हैं। सबसे अच्छा रहेगा आप डियर लिखकर उसका नाम लिख दीजिए। उसके बाद आ जाती है बॉडी, बॉडी में आप ओकेजन बताएंगे, डेट बताएंगे, टाइम बताएंगे, वेन्यू बताएंगे, ये पूरी चीज़ें डिटेल में बता देंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन होता है, यानी योर्स फेथफुली और फिर सेंडर्स नेम, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मिस्टर और मिसेस वाईपी अफसर हैं जिन्होंने अरमान या अनीता मल्लिक आप हैं और आपको इनवाइट किया है संडे को अप्रैल 8 PM पर, और सेलिब्रेट करना है। अक्षय का एडमिशन हो गया है बॉस्टन यूनिवर्सिटी यूएसए में, तो वो एक फेयरवेल पार्टी देना चाहते हैं क्योंकि वो 1 हफ्ते में यहाँ से जाने वाला है बॉस्टन के लिए। तो एक इनफॉर्मल इन्विटेशन अपने रिलेटिव्स को लिखिए। आप देख सकते हैं ऊपर हमने सेंडर्स एड्रेस से शुरू किया है, आई होप यू कैन सी दिस। मैक्सिमम 3 लाइनों में ख़त्म कर दिया, फिर डेट लिखा, फिर हमने लिख दिया डियर अरमान या अनीता, और उसके बाद से हमारा बॉडी शुरू हुआ। ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन और ये हो गया हमारे होस्ट का नाम। आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, ज़्यादातर इनपुट तो दिया हुआ है। दिस इज़ अ प्लेजर टू इन्फॉर्म कि उनका बेटा अक्षय जो है ही हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉस्टन एंड ही विल बी लिविंग विद इन अ वीक टू कमेंस हिज कॉलेज एजुकेशन देयर। तो हम ये दे आर विशिंग टू इन्वाइट यू टू जॉइन अस एट आवर रेसिडेंस at the above address on Sunday itna at 8 PM to felicitate Akshay as well as to bid him a fond farewell. As you are one of his childhood friends, तो आप sincerely वो उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि आप ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गया आपका लेटर का फॉर्मेट। आप एक चीज़ का ध्यान देखेंगे, मैंने कहा था ना फर्स्ट और सेकंड पर्सन में रहेगा ये, तो ये देखिए आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज़ हमने किया है, हमने थर्ड पर्सन का यूज़ नहीं किया है इसमें। वैसे ही एक और लेटर है, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, जिसमें आप विनीता या विनीत मेहरा हो, आपका एड्रेस है 4/58 और नारायणा विहार में न्यू दिल्ली में रहती हो। आपको इनवाइट किया है आपके एक फ्रेंड ने विनोद मलिक के सिस्टर की वेडिंग में, और आप से वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप प्लीज़ 1 वीक पहले आ जाना ताकि अरेंजमेंट्स और फैमिली जो है हमें जो
उसकी सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन है, उसमें तैयारियों में कुछ मदद कर सको, तो ये इनफॉर्मल इनविटेशन है, ठीक है। इसके लिए आप ऑब्वियसली कार्ड तो नहीं छपाओगे ना कि नहीं भाई तुम अरेंजमेंट्स करने आ जाओ। तो ये मैंने बहुत ही अनयूजुअल सा एक लेटर उठाया है नेट से ही, और आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। एड्रेस डाला आपने ऊपर, 8 मार्च लिखा, डियर विनीत लिखा, इट इज़ माई प्लेजर टू इन्वाइट यू एंड योर फैमिली टू अमृतसर फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग। आई रिक्वेस्ट यू टू कम अ वीक अर्ली, दैट इज़ ऑन इतना, इंस्टेड ऑफ 25 मार्च। मतलब आप 5 दिन पहले आ जाओ, बजाय इसके कि 2 दिन पहले आने के। यहाँ क्यों लिखा है 2 दिन पहले, आई डोंट नो, एक सेकंड रुकिए। जस्ट 2 डेज बिफोर नहीं है, जस्ट 5 डेज बिफोर है, ठीक है। ये प्लीज़ अमेंडमेंट कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। ये 5 डेज होना चाहिए, FIVE होना चाहिए। There is a mistake in typing. So there is much work to be completed here and your help, support and guidance will be much appreciated. तो आप उनकी मदद चाहते हैं, अरेंजमेंट्स जो है आपके रेसिडेंस पे हो रहा, आपने बता दिया, और तुम अपनी फैमिली के साथ हमारे यहाँ स्टे कर सकते हो। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून। योर्स, अगेन यहाँ सेम मिस्टेक है, योर्स आना चाहिए, वो मिस हो गया है। हाँ, एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। योर्स सिंसियरली, ठीक है, विनोद। ये हो गया आपका लेटर। सो विद दैट आई हैव कंप्लीटेड, and thank you so much for watching, and please do like, share and subscribe to my channel for more attractive writing skills coming in the coming days, coming weeks. मैं अभी जल्दी ही अपलोड करूँगी रिप्लाई के बारे में। प्लीज़, ये थोड़ा लंबा वीडियो बन गया, बट डू I know you are going to enjoy it. You will enjoy it. So please do write comment in the comment box. That works as a catalyst. I make improvements based on that. And thank you so much, children. Bye bye. God bless you all.